Pleasure to introduce Jagdish Deshmukh sir. Once again, I like to repeat, Jagdish Deshmukh sir. Sir is also known as Jagannath Jatra Das. Like you, sir was also an ex-Navodayan. Sir studied in JNB Jalgaon, Maharashtra in the year from 1993 to 1998, and has an excellent academic qualification. Sir stood first rank in 10th standard in JNB Jalgaon. Sir stood first rank in 10th standard in JNB Jalgaon. Sir stood second rank in 12th standard in Nasik Division State Board, and also sir obtained BTech degree in mechanical engineering from VJTI College, Mumbai in the year 2004, and also sir is having 8 years lectureship lectures. Sir has joined the engineering colleges as a lecturer for 8 years. Means sir is having a vast experience in teaching learning process. Sir actually now is a full-time devotee of ISKCON, which is known as International Society for Krishna Consciousness, Mumbai, for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. So we are having an ex-Navodayan, your elder brother, whatever you can call. Sir is going to teach us about life skills. You know that when we are entering into the class, we are teaching you about English, we are teaching you about Hindi, we are teaching you about chemistry, physics, mathematics. But you know that for living in the society, we should also know that how to live and how to control our emotions like anxiety and other things, so that we can live happily. So I like to call sir to give a speech or introduce himself and enlighten us regarding the life skill. Thank you all of you. First of all, I thank our dear principal sir, Shri Ravikanji, our vice principal sir, Shri Madhumangal Bishwasji, and all teachers for giving me kind shelter here at JNB East Gato Hills of Meghalaya State. I wish you all good morning. I'm very happy to be here to serve you. Today is my first school visit of Meghalaya State. Till now, last 10 days, I was in Assam for visiting schools there, Navodaya schools. Till now, all over India, in last 3 years, I have gone to 248 Jawahar Navodaya Vidyalaya of 22 states for my services. Why services? Because service gives us joy and satisfaction. We say, I love my, what do we say? I love my country. What does it mean? What does it mean? उसका मतलब क्या है? सर बोलना है, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, ऐसे बोलते तो हैं प्रतिज्ञा में, लेकिन मतलब क्या है? बस बोलने की बात है. जैसे मदर फादर they love us not by saying I love you beta, they love us by their service. They show their love by their compassion, their kindness. So we should know, and we say we all Indians are my brothers and sisters. How? Body wise, our mother father are not the same. Body wise, all our mother fathers are different. But we say we all are brothers and sisters. How? We should know, because we are not his bodies of flesh and bones. हम इस हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, जो तो पशुओं का भी होता है. हड्डी मांस का बॉडी बड़ा मजबूत होता है पशुओं का. हाथी, घोड़ा, गेंडा, राइनो, वेरी पावरफुल बॉडी वाइज. Our self, our real self is a divine soul.
I saw yesterday Lord Jesus photo in mass, in campus, also many places. I felt happy. Why? Jesus gave his life for others' welfare. Jesus always spoke about God, saying that he said, I am Son of God. Jesus always said, I am Son of God. And we all are sons of God. And we have common Father. That is Supreme Lord. We say God, the Supreme Father. Not just human beings. Not just human beings. All living beings in the all billions of universes. The common Father is there for all living beings. Only one common Father, Supreme Lord, we say, and He is our Mother Father. And we are parts of that same God. That's how, because we are souls, divine souls, the divine children of God, we all become brothers, sisters. Not just human beings, please understand. All living beings, plants, animals, insects, birds, even demons also, demons, demigods, devata, we say, all are the one family. One family. That's how we say our Indian culture, Vasudhaiva Kutumbakam. In Sanskrit they say Vasudhaiva Kutumbakam. Our G20 theme was that. G20 summit. India was hosting G20 summit. This was the theme of that summit. Vasudhaiva Kutumbakam. What is Kutumba? Family. What is Vasudha? Planet. Earth. The whole planet is one family. Nobody can divide that family. Artificially, we may make borders. Oh, this is other state, this is other state, this is other country, this is other country. Artificially, we do some borders, fencing. But you see, birds, animals don't follow these borders because they live natural life. For birds, there is nothing like, oh, this is one state, this is other state. For birds, the whole planet is common place. And we see that like moon, like a sun, one single, like a ball, like a globe. Nobody can divide that globe. In the same way, our planet, Earth, is single place, single common, whole unit. Nobody can divide. That's how we understand that our identity, real identity, our unchanging identity, unchanging, all-time identity is not of the body, flesh and bone body, which is changing all time. Body changing all time. Some 10 years ago, you remember your photo, you remember yourself. Small kid in the primary school, 10 years ago. 20 years ago, this body was not there. This 20 years ago, this body was, for you, body was not there. 20 years ago, I was 25 years old. 20 years ago. But 50 years ago, this body was not there. And sometime later, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद, ये बॉडी नहीं होगा. तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं. हम वो नहीं जो बदलता रहता है. जैसा मन हमेशा बदलता रहता है, अपने विचार बदलता है. बुद्धि वो भी बदलता रहता है. कभी बुद्धि चलता है, कभी बुद्धि नहीं चलता है. अपना स्टेटस आईडी, क्लास आईडी, या अपना जो अभी मैं 6th में हूँ, अभी मैं 7, जो भी 7th में बच्चे हैं 1 साल तक बोलते रहे हम 6th वाले हैं, हम 6th वाले हैं. अभी हम 6th वाले नहीं हैं, हम 7th वाले हो गए. तो ऐसा बदल जाते हैं ना, बदल जाते, बॉडी बदल जाती है, क्लास बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है. जो बदलता नहीं वो हम हैं. उसे बोलते हैं आत्मा. क्या कहते हैं? हाँ, डिवाइन सोल. जीसस ऑलवेज स्पोक अबाउट दिस, that we should develop our love for God. Why? He is our all-time mother father as a soul. Body wise we don't know. Body wise we don't know how much time we will stay together. In a family also we see mother father live sometimes this world. माता पिता कभी कभी बच्चों को छोड़, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, दुनिया छोड़ देते हैं. उनके हाथ में नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना ही पड़ता है. जब डेथ आती है सब कुछ छोड़ना पड़ता है. मैं क्यों बोल रहा हूँ?
जीवन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा कोई भी काम करने के लिए 2 चीज़ आवश्यक है। आप लोग हिंदी समझते हैं अच्छे से कि इंग्लिश बोलूं? मैं दोनों बोल सकता हूं, लेकिन लगता है कि छोटे बच्चे इंग्लिश समझते नहीं समझते हैं। हिंदी समझते सब लोग? बोलो। मैं आपके लिए आया हूं। लंच के बाद हम निकल जाएंगे अगले स्कूल में। हम अपना जीवन दे दिए 14 साल से। मैं बीटेक के बाद 8 साल कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में। बस हमें शादी का मन नहीं था, हमें था कि समाज की सेवा करनी है। जैसे जीसस भी अपना जीवन दे दिए थे सेवा के लिए, तो हमने जीसस से अपना कुछ सीखा है। मैं बचपन में एक दूरदर्शन टीवी पर मालिका आती थी, सीरियल दया सागर। यीशु का जीवन था कि हाउ जीसस वाज ओशन ऑफ मर्सी। यीशु जो है क्या थे? दया के सागर। जो लोग उनको मार दिए, क्रॉस पे चढ़ा दिए, सूली पे चढ़ा दिए, खिल्ली ठोक के, उनके लिए भगवान को प्रार्थना किए, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। दिस वाज द काइंडनेस ऑफ जीसस। We accept Jesus as our teacher, guru. We get inspiration from Jesus. We love Jesus. We believe in Jesus. Why? He loves God. He loves God, and he is a very kind messenger of God. In the same way, we should know that anyone in the world, universe, anyone who loves God is respectable by us. Is respectable by us. जो भगवान को चाहता है, हम उससे उसका सम्मान करते हैं, तो वो कोई भी हो। भगवान की सेवा में केवल मनुष्य नहीं, पशु भी होते हैं। भगवान की सेवा में पंछी भी होते हैं, सभी होते हैं। सभी जीव भगवान का है। ये मत सोचना केवल मनुष्यों के लिए भगवान है, पूरा दुनिया का भगवान है। तो जितने भी लाखों प्रकार के जीव है, सबका एक ही भगवान है। दुनिया का माता पिता एक ही भगवान है। ये समझने से हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। कोई भगवान को मानता भी नहीं होगा, हम उसका द्वेष नहीं करते। क्यों? ठीक है, उसका बुद्धि नहीं समझने का भगवान को, कोई बात नहीं। जैसे गधा कहाँ भगवान को समझेगा? कुत्ता कहाँ भगवान को समझेगा? क्या हम कुत्ते को गधे को जीने नहीं देते? जीने देते हैं, क्योंकि वो कुत्ता गधा है, वो उसकी बुद्धि नहीं है। बोलने का मतलब ये है, कोई भले भगवान को माने ना माने, यदि हम भगवान को मानते हैं, यदि हम भगवान को चाहते हैं, हम सबको अपना मानते हैं, सभी को अपना मानते हैं। ये समझना आवश्यक है। क्यों? आज समाज में जो हिंसा होती है, वायलेंस, आज समाज में जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम्स है, वो इसी वजह से है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं इनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है, ऐसा सोचते हैं। जो अज्ञान है, सबका भगवान, जैसे सबकी हवा एक है, सबका चांद एक है, सबका सूरज एक है, सबका भोजन एक है, सबकी दुनिया, पृथ्वी, भूमि जो बोलते भारत माता, भूमि, motherland is common to all living beings. We should know we are not here to fight on small issues, small differences. We should know there will be always diversity. There will be always diversity. इस दुनिया में हमेशा क्या होगा? विविधता होगा। एक कमल का फूल है, एक गुलाब का फूल है, दोनों फाइट नहीं करते। तू कमल क्यों और मैं गुलाब क्यों? नहीं, गुलाब अच्छा है, कमल अच्छा है, और गेंदा का फूल होता है गेंदा, वो भी ठीक है। चमेली का भी वो छोटा सा फूल है चमेली का, वो भी ठीक है। सबका अपना वैल्यू है। वैसे ही हम सबका बड़ा वैल्यू है। भगवान कभी भेद नहीं करते हैं, कभी भेद नहीं करते। भगवान के लिए जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, वैसे भगवान के लिए हम सभी जीव, पूरा दुनिया एक जैसा फैमिली है। बच्चों, हमने बचपन से थोड़ा समझा था, सीखा था कि हम सब अच्छा ज्ञान लेकर समाज के लिए सेवा करना चाहिए, क्योंकि नवोदय समिति हमें गाइडलाइन देती है। मोटिवेशन क्या होना चाहिए स्कूल में, अपने जीवन में।
तो गेट पे कभी लिखा होता है, पता नहीं, यहाँ मैं दिखा नहीं कहाँ लिखा हुआ, लेकिन लिखा होगा कहीं। तो बोलते हैं कम टू लर्न। क्या बोलते हैं? कम टू। जैसे हम स्कूल में आए हैं तो हम क्या खेलने के लिए आए? बस खेलो, बस खाओ और खेलो, नाचो, सो नहीं, लर्न। बिलीव मी, आई वॉज टॉपर इन माई स्कूल एंड कॉलेज दैट टाइम. So this motivation of learning will give you focus and joy. You will never have anxiety. चिंता कब आता है? जब हम पढ़ने का छोड़ के, सीखने का छोड़ के, एग्ज़ाम में कितना अंक आएगा, कितना मार्क्स आएगा, कौन सा पोजीशन आएगा, ये सोचते रहते हैं. वो छोटा चीज़ है और वो अपने हाथ में नहीं है. रिजल्ट इज नेवर इन आवर हैंड्स. व्हाट इज इन आवर हैंड्स? एफर्ट्स. इफ यू पुट, मेहनत यदि हम करते हैं, किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, समझते हैं, तो बच्चों आपका मन लगेगा. क्यों? आपको ज्ञान लेना है, आपको सीखना है. यदि आप सोचोगे रिजल्ट क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा. तो सिंपल, बच्चों का बड़ा रहता है. मुझे सब जगह पूछते हैं नवोदय में बच्चे, सर मन भटकता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, पढ़ने बैठते हैं और हमारा मन ना वहाँ नहीं होता है, सब जगह होता है. ऐसा प्रॉब्लम तो है सब जगह. यहाँ है प्रॉब्लम ऐसा, कभी पढ़ना चाहते लेकिन पढ़ नहीं पाते, दिमाग जो है ना यहाँ वहाँ भटकता है. तो सोल्यूशन क्या है? हमने समझाया अनुभव से कि यदि अपना मन कुछ सीखना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा समझना है, तो मन लगेगा. और अच्छा ज्ञान लिया होगा, अच्छा पढ़ाई किया होगा, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं होगा. और सुख जो हम चाहते हैं, सुख कुछ पाने से नहीं होता है. सुख अपना माइंड स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड जो बोलते हैं. सब लोग बोलिए, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड. यस. तो अपने हाथ में है. मन का जो स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड, किसके हाथ में? दूसरों के हाथ में है? नहीं, अपने हाथ में. अपने मन को हम एडजस्ट कर सकते हैं. दुनिया को, बाहर का चीज़ को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरों को एडजस्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को कंट्रोल कर सकते अपने हाथ में. तो इतना समझो बच्चों, अंतिम थोड़ा 2 मिनट, कि यदि हम अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, इजी एंड हैप्पी, सुखी बनाना चाहते हैं, तो इतना समझिए. हम अभी स्कूल में जो है, हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा हमें सीखना है, तो मन लगेगा. एंड नेवर कंपेयर विथ अदर्स. उसको कितना मार्क्स मिला, मुझे कितना मिला, नेवर कंपेयर. वाई? नो नीड टू कंपेयर. वी ऑल आर यूनिक. जैसे मछली और पंछी, फिश एंड बर्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड. इन द सेम वे नोबडी कैन बी कंपेयर्ड विथ अदर्स. सबका अपना गुण और स्वभाव, शक्ति, बुद्धि अलग होता है. आप जो आपका बेस्ट दे सकते हैं, इफ यू डू योर बेस्ट एफर्ट्स, दैट इज योर सक्सेस. ये भी अच्छा पॉइंट है समझने के लिए. बोलो, सक्सेस इज आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स. कि यदि हम समझे, सक्सेस के लिए फर्स्ट आना नहीं है, सक्सेस के लिए मेडल पाना नहीं. वो दुकान में मिल जाते हैं मेडल, कितना दुकान में जितना चाहिए उतना मेडल लेके अपना नाम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाहिए तो मेडल चाहिए तो. लेकिन जो हम सुख चाहते हैं, सक्सेस चाहते जीवन का, वो किस में है? अपना बेस्ट पॉसिबल, जो भी संभव है, उत्तम, बेस्ट प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं. यस, आई डिड माई बेस्ट. नो नीड टू वेट फॉर अदर्स अप्रूवल. हम क्या सोचते हैं? दूसरों का अप्रूवल मिलना चाहिए, मैं सक्सेस हूँ या नहीं. नो, पीपल विल नेवर प्रॉपरली गिव अप्रूवल. दे विल बी बायस. वो लोग बायस होते हैं. लेकिन जब हम स्वयं का अपना समझते हैं, हमने मेहनत किया था, हमने अच्छा मन लगाया था, कोशिश किया था, वो हम सक्सेस, जो भी है सक्सेस है. हाँ, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, यू कैन ऑलवेज डू बेटर. ये समझिए कि लर्निंग मोटिवेशन फॉर सर्विस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन. केवल पैसा नहीं कमाना, केवल वो छोटा चीज़ है, क्योंकि कितना भी पैसा होगा हम ज़्यादा उसका सुख नहीं ले सकते. वो एक लिमिट में सुख देता है. लेकिन जब अपना मन कुछ अच्छा काम करना है, कोई अच्छा सेवा करना है दूसरों के लिए, क्यों? दूसरे अपने हैं, जैसे पहले बताया मैंने,
पूरा दुनिया अपना है, सभी जीव अपने हैं, सभी लोग अपने हैं, ये तो समझोगे तो आप कुछ करना चाहोगे, आप कुछ करना चाहोगे, अच्छा काम करना चाहोगे। एंड इफ यू विश टू सर्व, यू विल बी हैप्पी। यदि आप कुछ अच्छा काम, अच्छा सेवा करना चाहोगे दूसरों के लिए, वो आपको इतना आत्मा को सुख देगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एनीवे, और भगवान से भी हम जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। क्यों? भगवान भी यही चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अच्छी सेवा करें, जैसे यीशु हमको सिखाए। केवल खुद का मत सोचो, सेल्फिश नो, सबका सोचो। क्यों? खुद का सोचने से खुशी नहीं मिलेगी, तो लोग खुदकुशी कर लेता है। मुझे खुशी नहीं मिली, मैं जी के क्या फ़ायदा, खुदकुशी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है। लेकिन जब हम सबका सोचते हैं तो हमें बड़ा खुशी मिलता है। जैसे माता पिता को खुशी होती है बच्चों का सेवा करने में, बच्चों के लिए मदद करने में, व्यवस्था बनाने में, वैसे जब हम समझेंगे सभी अपने हैं और सबका लिए कुछ अच्छा काम करने से हमें बहुत सुख मिलेगा। और ठीक है, पैसा भी आवश्यकता होता है, वो भी मिलेगा। ये बात नहीं है कि सर सेवा करने से कहाँ पैसा मिलेगा, अवश्य मिलता है। अभी मैं 14 साल से जॉब छोड़कर सेवा में लगा हूँ। हम तो एक पैसा कहीं चाहते नहीं हैं, किसी को मांगते तो कभी नहीं है, लेकिन अनुभव यह है कि हम सेवा देते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो भगवान की इच्छा से अवश्य हमें जो भी आवश्यक है मिलता है। हैव फेथ कि जैसे यीशु, बस अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ। यीशु जो है कितना साल जिए थे, मतलब बॉडी वाइज 32 साल, 32 years he was on the earth, बट कितना साल हो गया, 2000 साल, कम से कम 2026 साल हो गए ना, एडी आफ्टर डिपार्चर एडी। यीशु जाके फिजिकली दिखता नहीं है कहीं पे, लेकिन स्पिरिचुअली ही इज देयर। वी शुड नो डिवाइन बींग्स नेवर गो अवे, दे ऑलवेज स्टे, डिवाइन बींग्स। तो यीशु जो है आज पूरा दुनिया में 2026 साल से अमर है ना, अमर, लिविंग ऑल टाइम। हाउ? बाय हिज कंपैशन, by his mercy, by his love for not just one group of people, all living beings. You see, he is known as good shepherd. He is known as shepherd. Why? Because he was not just loving human beings, he was kind to all living beings. We should know कि भगवान का जो संदेश देता है, भगवान का जो सेवक होता है, वो सबको अपना मानता है। हम जैसे हमें मेघालय में आने का इच्छा था। क्यों? हम पूरे दुनिया में पूरे देश में जा रहे हैं। 22 पूरा देश का 22 राज्यों में जा चुका हूँ, और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बाकी था, तभी मैं 2 हफ्तों से नॉर्थ ईस्ट में आया हूँ। क्यों? हमें सबके प्रति अपनापन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वी ऑल आर वन फैमिली। सो मैं सोचा, मैं पंजाब गया, हिमाचल गया, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा गया, तो मेघालय क्यों नहीं? क्योंकि मेघालय भी अपना ही है, पूरा दुनिया अपना है, तो मेघालय क्यों नहीं है? तो ये समझिए, जब हम अपना सेंस ये डेवलप करते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ बॉडी का नहीं होता है, आत्मा का होता है। बॉडी तो रोज़ हम भूल ही जाते हैं, जब सोते हैं बॉडी को हम भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा जो है कभी सोता नहीं, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं बनता, आत्मा कभी बीमार नहीं होता, आत्मा कभी मरता भी नहीं। भगवान जैसा आत्मा भी क्या है? परमानेंट। सोल इज इटर्नल। क्या बोलते हैं? इटर्नल सोल। और हम दुनिया में जो आए हैं, भगवान के धाम से आए। जो बोलते थे यीशु हमेशा, आवर फादर इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, आवर फादर इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज बॉडी गिव्स पेन, देयर आर डिफिकल्टीज इन दिस वर्ल्ड। दिस इज फॉर सम लाइक गेस्ट, वी आर लाइक गेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो गेस्ट जब होते हैं, जर्नी में जब होते हैं, तो डिफ़िकल्टी आती है, दुविधा होती है, समस्या होती है, लेकिन हम जानते हैं ये थोड़े समय की बात है। हम तो जो आए भगवान के धाम से, वो परमानेंट है। जैसे आपके लिए स्कूल टेम्पररी है, आपका घर परमानेंट है, आपके हाउस मास्टर टेम्पररी है, आपके माता पिता परमानेंट है, वैसे ही ये दुनिया आपके लिए टेम्पररी है, इन भगवान का धाम ये परमानेंट है। बच्चों ओके ठीक है। तो ये तो बातें जो है, थोड़ा सा हमें भगवान में श्रद्धा हो, शक्ति मिलती है। भगवान में विश्वास हो तो हमें भय नहीं होता। द फेथ इन गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ। व्हेन यू believe in God, you can be
confident. You will have self confidence. You can believe in yourself. बिलीव बोलते हैं ना, आत्मविश्वास चाहिए। क्या बॉडी में विश्वास करेंगे? नहीं, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। जो आत्मा भगवान का अंश है, ये समझने से कि हम सभी जो है भगवान की संतान हैं और सभी जीव भगवान के संतान हैं। सबके प्रति सेवा का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव हमें सुख देगा। किसी के प्रति द्वेष होगा तो हम जलेंगे, हम तड़पेंगे, हम अशांत होंगे। बोले जलन, जेलसी हमें जलाती है, लेकिन जब प्रेम होगा यीशु जैसा कि कोई भी हो, वी लव ऑल, वी सर्व ऑल, विल बी हैप्पी, एंड देन दिस माइंड विल बी गिविंग यू फोकस. The such mind will give you focus, concentration in your studies, in your life, in any activity, and you'll be happy. कुछ समझ में आया आपको जीवन के विषय में? नवोदय हमारे लिए बहुत, हम सबके लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है, जहाँ पे हमें इतनी सुविधा मिलती है देश की ओर से। तो हमें इसका अच्छा उपयोग लेना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा ज्ञान लेना है, आगे समाज के लिए कुछ अच्छा सेवा करने का मन होना चाहिए। क्यों? हमने लिया है तो देना भी चाहिए, कुछ देना भी चाहिए। केवल लेंगे समाज, देश से, दुनिया से, कुछ देंगे नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। जैसा लिया है अभी बचपन में, तो बाद में अच्छा बनने के बाद हम समाज के लिए कुछ सेवा भी करना चाहिए। जो मूल्य है कि सर्विस मूड, लव फॉर ऑल, एंड देन बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, बीइंग ग्रेटफुल आर वेरी वैल्यूएबल, विच विल हेल्प अस इन आवर लाइफ टू बिकम satisfied. Once again, I thank our dear principals and all teachers for giving this opportunity to serve you here. I wish you all the best. May God bless you. Thank you all once again. Respected colleagues or my dear students, good morning. Morning, sir. कबीर का एक दुआ है, मैं सर की थैंक्स में वो दोहा पढ़ना चाहूँगा। दुआ है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु विधा भूखा जाए। सर ने आज जो बातें जीवन के बारे में आपको बताई, जीवन का यथार्थ जो आपको बताया, जो रियलिटी बताई, हर धर्म का सार एक ही है, दैट गॉड इज वन, लव ऑल। प्रभु यीशु ने भी यही बोला, और सारे धर्मों के जो भी पैगंबर साहब हुए या सिख में जो भी हुए, हिंदुज़म में जो भी हुए। तो सर आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए, मैं नवोदय विद्यालय ईस्ट गारू की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ अपना ज्ञान शेयर किया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे बच्चों ने ना सिर्फ इससे सीखा होगा, वो अपने जीवन में, डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में इसे उतारेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड अमेजिंग डे। थैंक यू। Hurry up, without wasting your time.